Lecture. Hello class. Now in this lecture we will see a single stage reciprocating compressor, air compressor. In the previous lecture we have gone through types of air compressor, their classification, okay, and how they actually work. In Not in brief, but now here we will discuss this single stage compressor in detail because all the automotive. If we talk about the automotive, then reciprocating compressor is most widely used, and we also have in the syllabus. If we have a look in this, there is a numerical r coming on the reciprocating compressor, single stage reciprocating compressor. So we have to go in detail for this, for that particular compressor. Now here I have drawn a schematic view of our reciprocating compressor, but thing need to be note that this is single stage reciprocating compressor, okay. And the single stage reciprocating compressor, in that, two type two subtype may be there, okay, with clearance volume and without clearance volume. In uh, single stage air compressor without clearance volume, and the single stage air compressor with क्लियरेंस वॉल्यूम. अभी क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है ये तो हमें पता है, दैट इज वॉल्यूम विच इज प्रेजेंट अबाउट टीडीसी in order to opening and it is space provided for opening and closing of the walls, inlet and outlet wall. So if no any clearance volume is provided uh, in a cylinder, then what will happen, the piston head will collide with that wall while opening and closing. So अगर clearance volume नहीं दिया है, then the wall mechanism should be like this only. This baffle type plate type wall is there, okay, or both inlet and outlet wall is located outside the cylinder, not, it is not extended, okay. We will see how it exactly, okay. So this is our reciprocating compressor, name itself indicating it is reciprocating, okay. It reciprocating in between TDC and the BDC. So there are two marks, that is TDC and the BDC. TDC stand for the top dead center and the BDC stand for the bottom dead center, okay. So this is our cylinder. In the cylinder, the cylinder consists of the piston assembly inside it, okay. That piston is supposed to move in between TDC and the BDC in accordance with the stroke of this piston inside the cylinder. I have drawn PV diagram over here, okay. This is pressure volume diagram, exactly in accordance with the working system, ओके. जैसे ही सिस्टम मूव होगा वैसे ही हम पीवी डायग्राम यहाँ देख सकेंगे कि पीवी डायग्राम कैसे मूव हो रहा है, ओके. सो दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन इन सच वे कि ये जो जैसे पिस्टन मूव होगा वैसे उसी मैनर में आपको ये पीवी डायग्राम भी मूव होते हुए दिखाई देंगे. आई हैव जस्ट impose it, okay. So first of all we will see how exactly, first of all, this system is working. After that we supposed to correlate this thing with the PV diagram, okay. So as there is a no clearance volume, this piston is touches to this line, it travel till the head of this piston, no clearance volume ना. And even though the if there is a no clearance volume, that's why the जो भी wall है हमारे इनलेट वॉल एंड एग्जॉस्ट आउटलेट वॉल, वो क्या है, सिस्टम के बाहर है, ओके. सो वो सिस्टम के अंदर अंदर नहीं आने वाले ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम, सो वो बाहर ही रहने वाले. अभी क्या हो रहा है देखिए, व्हेन पिस्टन, consider piston at this position and it start to move in downward direction, okay. ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, then what will happen, as piston moving in downward direction, okay, क्या होगा जब पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा हमारा, उस टाइम क्या होगा कि वैक्यूम जनरेट होगा इनसाइड द असेंबली. जैसे ही वैक्यूम जनरेट होगा, दैट टाइम this plate, okay, this plate which is behind which spring is present, okay, behind this plate behind which spring is present, it get pull downward direction. जैसे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल हो गया, ये तो बंद हो गया. सिमिलरली ये जो प्लेट है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल होगा, बट उसके पीछे भी स्प्रिंग है. सो अगेन दिस स्प्रिंग, this plate get pulled downward direction and now inlet is open, so whatever the air present in the atmosphere are entering into the system as piston moving downward direction and the vacuum generate होगा यहाँ. इसके वजह से ये प्लेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा और ये प्लेट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, बट ये प्लेट क्या करेगा, वे बंद कर देगा और ये प्लेट वे ओपन हो जाएंगे, क्योंकि इसका स्प्रिंग देखिए अपोजिट साइड में, इसका स्प्रिंग अपोजिट वाइस वर्सा है, ओके. सो जैसे ही वैक्यूम जनरेट हुआ और यह हमारा प्लेट नीचे आया,
इनलेट प्लेट, ओके। सो हमारा क्या होगा, जो फ्रेश एयर है फिल्टर होके, बिफोर दिस थिंग इनलेट वॉल देयर इज अ फिल्टर शुड बी देयर, एयर फिल्टर शुड बी देयर, उसको एफआरएल यूनिट बोलते हैं, okay, so that FRL unit should be there, that is filter regulator and lubrication unit should be there, okay. So that FRL unit, through this FRL unit the our what fresh air coming into the सिस्टम, एंड ये पिस्टन जब तक बीडीसी तक नहीं पहुंचता तब तक फ्रेश एयर अंदर आती रहेंगी। सो टिल बीडीसी, जब पिस्टन टिल द बीडीसी द फ्रेश एयर कमिंग थ्रू दिस वे इनसाइड द सिस्टम, एज पिस्टन रीचेस टू बीडीसी इट स्टार्ट अपवर्ड स्ट्रोक, ओके। जैसे ही पिस्टन ने अपवर्ड स्ट्रोक किया, ये जो बैफल प्लेट है जो नीचे पुल हुआ था बिकॉज ऑफ वैक्यूम, नाउ इट ड्यू टू द स्प्रिंग लोड इट गेट pushed upward direction, this thing, this baffle plate also push upward direction, but जब ये push होगा upward direction, so ये इस path के against push होगा, so ये यहाँ से आने वाला एंट्री, यहाँ से आने जाने वाला एंट्री बंद हो जाएगा, बट ये जो बैफल प्लेट है अगर ये ऊपर के डायरेक्शन में पुश हुआ तो ये वे ओपन हो जाएगा, ओके। बट it is not directly open as piston start moving from bottom dead center, okay। जैसे ही piston bottom dead center से upward stroke करता है, at that instant only ये प्लेट सिर्फ ऊपर जाएगा, बट ये प्लेट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जो इसका जो स्प्रिंग होता है इस बैफल प्लेट के पीछे जो भी स्प्रिंग हम यूज कर रहे हैं उसका स्टिफनेस बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनलेट स्प्रिंग प्रेजेंट विच इज बिहाइंड द इनलेट बैफल, ओके। सो ये जो स्प्रिंग है आउटलेट बैफल के पीछे लगा हुआ है, दैट स्प्रिंग हैविंग अ ह्यूज स्टिफनेस। सो in this case also this baffle plate as अगर piston BDC पे पहुंचा है और then and piston start to move in upward direction, at that circumstance also your baffle plate of outlet port is pushed against this opening, okay, because spring is having high stiffness, okay। Now piston moving upward direction, it travels somewhat up till here, okay। सो जैसे ही पिस्टन ने यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ट्रेवल किया, ओके, जो भी एयर आया था ड्यूरिंग ए सक्शन स्ट्रोक वो क्या हुआ है हमारा कुछ हद तक कॉम्प्रेस हुआ है। नाउ पिस्टन अगेन फर्दर मूव फ्रॉम टिल दिस पोजीशन, वो और कॉम्प्रेस हुआ क्योंकि ये भी बंद है और ये भी पोर्ट बंद है। जब पिस्टन यहाँ तक पहुंचा, ओके, दैट टाइम व्हाट हैपन, थोड़ा और प्रेशर बिल्टअप हुआ। जब पिस्टन यहाँ पे पहुंचा नियर टू हेड दैट टाइम जो भी प्रेशर है अंदर बिल्ट अप हुआ है एयर को कंप्रेस करके, दैट प्रेशर इज सफिशिएंट टू डिफ्लेक्ट दिस स्प्रिंग विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द आउटलेट बैफल। वो एयर इस बैफल को डिफ्लेक्ट करेगा बिकॉज ये जो स्टिफनेस था स्प्रिंग का आउटलेट बैफल के पीछे लगा है वो बहुत ज्यादा था। इसके वजह से जब तक प्री डिफाइंड या डिजायर्ड प्रेशर जनरेट होता नहीं सिस्टम के अंदर ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक, तब तक ये स्प्रिंग डिफ्लेक्ट नहीं होगा। जैसे ही पिस्टन टीडीसी के पास पहुंच गया, दैट टाइम जो भी प्रेशर बिल्टअप हुआ दैट इज सफिशिएंट टू डिफ्लेक्ट दैट स्प्रिंग, एंड जैसे ही सफिशिएंट प्रेशर डेवलप हो गया, द प्रेशर ऑफ एयर पुशिंग दिस बैफल upward and it will find their path and going into the reservoir. This is the reservoir, okay, this is the R for the reservoir. So ये जो स्ट्रोक था पहला सक्शन स्ट्रोक जब पिस्टन टीडीसी से लेके बीडीसी तक आया, ओके, दैट टाइम ये जो स्प्रिंग है ये लो स्टिफनेस का इसने ये बिकॉज ऑफ जनरेशन ऑफ वैक्यूम वो क्या हो गया नीचे डिफ्लेक्ट हो गया, और फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक एयर फील्ड हुआ है सिस्टम के अंदर, और जैसे ही पिस्टन बीडीसी पे पहुंचा पिस्टन स्टार्ट टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही वो अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करता है तो ये जो स्प्रिंग है वो कम स्टिफनेस की वजह से होने की वजह से इट विल अलाउ टू मूव बैफल इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड ये पाथ जो है वो क्लोज हो जाएगा। बट ये स्प्रिंग हाई स्टिफनेस के होने की वजह से इट वोंट अलाउ to move upward. This baffle don't get move or it will not move upward, okay, it remain at the remain in close position, okay। and जो भी piston movement कर रहा है till the TDC during entire time air get compressed, and as soon as when piston reaches to TDC जो भी pressure है air का सिस्टम के अंदर जो बना है वो सफिशिएंट है इस स्प्रिंग को डिफ्लेक्ट करने के लिए, एंड दैट air itself deflecting this baffle outlet baffle, okay, and
entering into the reservoir. So हर स्ट्रोक में, सॉरी, हर साइकिल में, दिस इज, ये हो गया हमारा कॉम्प्रेशन साइकिल। और कॉम्प्रेशन साइकिल में कितने स्ट्रोक है? 2 स्ट्रोक, एक सक्शन स्ट्रोक और एक आउटलेट स्ट्रोक। ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक ये प्लीन ओपन होता है, ड्यूरिंग ये बैफल ओपन होता है, और ड्यूरिंग द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, ड्यूरिंग द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन स्ट्रोक क्या होगा? ये बैफल क्लोज ओपन होगा। मतलब जब पिस्टन टीडीसी पे पहला जो हमारा होता है सक्शन स्ट्रोक, पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी मूव होता है, दैट टाइम ये बैफल ओपन होता है और हेयर कंप्लीटली टीडीसी टू बीडीसी फिल्ड होता है। जैसे ही पिस्टन बीडीसी से मूव करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन, ये बैफल ड्यू टू द लो स्टिफनेस स्प्रिंग पहले क्लोज हो जाएगा, बट ये ओपन नहीं होगा देन ऑल्सो, बिकॉज इसका स्टिफनेस है पिस्टन का बहुत ज्यादा है। एंड जब पिस्टन पूरा कॉम्प्रेस करके टीडीसी तक पहुंचता है, दैट टाइम एयर जो अंदर प्रेजेंट होता है उसमें सफिशिएंट एयर प्रेशर डेवलप हो जाता है, दैट प्रेशर विल deflect or will responsible to deflect this spring which is present behind that baffle and will entering into the reservoir. So ये हो गया हमारा 2 स्ट्रोक मिला के एक compression cycle. So हर एक ऐसे compression cycle में ये reservoir filled होता रहता है, और reservoir के ऊपर हमारा होता है pressure gauge. ये जो pressure gauge है वो दिखाता है कि कितना pressure का air system में इस टैंक में फिल्ड हुआ है। सो ये रिजर्वायर मतलब एक बिग बड़ा टाकी रहता है, बड़ा वेसल रहता है, ओके, इलेप्टिकल cylindrical shape का below the compressor. So in that reservoir, air reservoir, we are supposed to fill our compressed air. Okay, so stroke by cycle by cycle ये fill होता रहता है और इसका प्रेशर बढ़ता रहता है. So in this way our single stage compressor, single stage क्यों बोल रहा हूँ मैं, because for example इस सिलेंडर से मैं समझो 10 बार इतना ही प्रेशर बना रहा हूँ, और ये 10 बार जो प्रेशर बन रहा है वो सिंगल स्टेज मतलब सिंगल सिलेंडर में ही बनेगा। ओके, 10 बार इतना जो प्रेशर है ये हमारा सिंगल स्टेज में बनेगा, मल्टीपल स्टेजेस नहीं यूज करो। मतलब एक सिलेंडर में मैंने 2 बार बनाया, दूसरे सिलेंडर में मैं उसको उस 2 बार को 4 बार किया, और नेक्स्ट सिलेंडर में मैंने उसको 4 बार को 6 बार किया। सो स्टेजेस में नहीं कॉम्प्रेस करो, मैं डायरेक्टली 1 बार से लेके 1 बार मतलब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक जो हमारा होता है 1 बार पे होता है। सो 1 बार से डायरेक्टली 10 बार पे मैं सिंगल सिलेंडर में ही कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया 10 बार की मुझे एयर चाहिए होंगी, तो सो एटमॉस्फेरिक 1 बार को मैंने 10 बार पे डायरेक्टली सिंगल सिलेंडर में ही कन्वर्ट किया, सो उसको बोलते हैं सिंगल स्टेज। अगर मैंने नंबर ऑफ सिलेंडर यूज किए होते, मतलब इस सिलेंडर का आउटलेट दूसरे सिलेंडर को दिया, फिर उस सिलेंडर का आउटलेट तीसरे सिलेंडर को दिया, सो इट विल बिकम 3 स्टेज, और जो भी तीसरे सिलेंडर का आउटपुट एयर प्रेशर होगा वो 10 बार चाहिए। ओके, बिकॉज मेरा आउटपुट मुझे 10 बार चाहिए। अभी ये क्या हो रहा है कि ये सिंगल स्टेज है, यहाँ से इन 1 बार जाएगा और यहाँ से आउटलेट 10 बार निकलेगा। सो सिंगल स्टेज में ही मैं कॉम्प्रेस कर रहा हूँ। सो उसका एडवांटेज क्या होता है वो हम देखेंगे बाद में मल्टी स्टेजिंग करने का, बिकॉज मल्टी स्टेजिंग विल इम्प्रूव अवर वर्क इनपुट। ओके, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। जैसे मैंने बोला वर्क इनपुट, ये देखो एक कॉम्प्रेसर है ना, तो ये कॉम्प्रेसर वर्क इनपुट लेता है और उस वर्क इनपुट को कन्वर्ट करता है एक प्रेशराइज वर्किंग मीडियम में। ये जो एयर है ये एक वर्किंग मीडियम है। ओके, सो हम क्या करते हैं, इसको वर्क इनपुट देते हैं। मतलब ये जो कॉम्प्रेसर है इसको हम इनपुट 2 वे से दे सकते हैं, 2 प्राइम एक फिजिकल मतलब मस्कुलर पावर, जैसे कि कोई बंदा पर्सन है या कोई एनिमल है वो इसको ड्राइव दे रहा है, या आईसी इंजन से ड्राइव दे रहे हैं, या इलेक्ट्रिक मोटर से ड्राइव दे रहे हैं। तो ये जो कंप्रेसर होता है ये वर्क डेवलपिंग डिवाइस नहीं है, ये क्या है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। ओके, सो इसका जो भी पीवी डायग्राम निकल रहा है इधर, ये जो पीवी डायग्राम है, और इसका अगर मैंने एरिया शेडेड किया, ये जो एरिया अगर मैंने इसको शेडेड किया और इस एरिया ये एरिया अगर मैंने निकाला, ओके, मैंने पहले ही बोला है कि पीवी डायग्राम का अगर हमने एरिया निकाला तो हमें उसका वर्क डन पता चलता है। ओके, फर्स्ट चैप्टर में ही हमने देखा था। बट ये हमारा क्या है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, वर्क हमसे लेता है और उस वर्क का यूज करता है एयर को प्रेशराइज करने के लिए। ओके, सो ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। सो ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस का जो पीवी डायग्राम निकला है यहाँ, ये कैसे निकला है वो हम देखते हैं। बट ये जो एरिया निकला है और ये जो शेडेड एरिया, अगर इसका मैंने एरिया निकाला, कैलकुलेट किया एरिया, ओके, एरिया कैलकुलेट करना रहा, तो
पहले ये रेक्टेंगल और फिर ये जो शेप है सेक्टर शेप, इस सेक्टर शेप को दोनों को प्लस करके जो एरिया निकलेगा उस वो जो एरिया है वो इंडिकेट करता है कि कितना पावर, कितना वर्क डन हमने इसको दिया, कितना वर्क, कितना जूल्स ऑफ वर्क हमने इस कंप्रेसर को एज ए इनपुट दिया टू डेवलप अ 10 बार ऑफ कंप्रेस्ड एयर। ओके, ये जो एरिया इंडिकेट क्या कर रहा है कि कितना वर्क इनपुट हमने कंप्रेसर को दिया टू डेवलप 10 बार ऑफ एयर। ओके, 10 बार ऑफ प्रेशराइज एयर। ओके, ना हम पीवी डायग्राम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, 1 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं अभी पीवी डायग्राम के लिए। 1 पॉइंट मतलब ये पॉइंट, अब ये पॉइंट कहाँ है, ये स्टार्ट ऑफ कंप्रेशन है, मतलब पिस्टन बीडीसी पे है। देखो पॉइंट 1 हमारा कहाँ है, बीडीसी पे, पॉइंट 1 हमारा बीडीसी पे है और इस पॉइंट से लेके पिस्टन अपवर्ड जाएगा। पिस्टन अपवर्ड जा रहा है मतलब हम डिसाइड करते हैं कि पहले ही सिस्टम में एयर अवेलेबल है। ओके, ये डायग्राम पढ़ते थे हमने, ऊपर से टीडीसी से स्टार्ट किया था, बट पीवी डायग्राम देखते टाइम हम पॉइंट 1 मतलब बीडीसी से स्टार्ट करेंगे। सो अगर पिस्टन बीडीसी पे है तो कंसिडर करो कि टीडीसी टू बीडीसी पूरा वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वो फिल्ड विद द एयर है और पिस्टन राइट नाउ एट द लोकेशन ऑफ बीडीसी। और जब पिस्टन बीडीसी पे है तो कैसे हो रहा है, पिस्टन अपवर्ड ट्रैवल हो रहा है। सो जैसे जैसे पिस्टन अपवर्ड ट्रैवल होता है वैसे वैसे आप देखोगे तो ये जो कर्व है अपवर्ड जा रहा है। सो ये जो अपना प्रेशर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि ये अपना ओरिजिन है। ओके, 0 पॉइंट। सो जैसे जैसे पिस्टन अपवर्ड जा रहा है बीडीसी से तो ये हमारा प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। अभी ये जो कर्व है, ये जो कर्व फॉलो हो रहा है प्रोसेस 1 to 2 के बीच में जो कर्व प्रोसेस फॉलो हो रहा है ये 3 टाइप के हो सकता है। ये कर्व आइसोथर्मल हो सकता है, ये कर्व आइसेंट्रोपिक हो सकता है और ये कर्व पॉलिंट्रोपिक भी हो सकता है। सो ये जो 1 to 2 प्रोसेस है ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हो सकता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो सकता है या पॉलिंट्रोपिक कंप्रेशन हो सकता है। सो ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। सो वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, सो हमारा वर्क इनपुट हमें कम देना पड़ेगा टू डेवलप 10 बार ऑफ कंप्रेस्ड एयर, वो हम देखेंगे बाद में। बट राइट नाउ कंसिडर करो कि ये 1 to 2 जो पाथ है, जो कर्व है, वो तीनों में से कोई भी एक प्रोसेस हो सकता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या पॉलिंट्रोपिक कंप्रेशन। सो ड्यूरिंग पिस्टन ट्रैवलिंग फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी अपवर्ड डायरेक्शन our pressure is get on built up and as soon as piston somewhat near to TDC, okay, somewhat near to TDC, जो भी मतलब at point 2 अगर हमने निकाला तो somewhat here, okay, somewhat पिस्टन कहाँ, यहाँ है, यहाँ। जब पिस्टन यहाँ है एट दैट इंस्टेंट जो भी प्रेशर कंप्रेशन के वजह से डेवलप हुआ है एयर में that is sufficient to deflect this our spring and 2 to 3। ओके, जब पिस्टन यहाँ है तभी ये जो बैफल है ये ओपन हो जाता है एंड क्योंकि इसका अंदर का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो सफिशिएंट होगी स्प्रिंग को डिफ्लेक्ट होने के लिए। एंड 2 to 3 प्रोसेस में फर्दर अपवर्ड स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन 2 to 3, ओके, बैफल ओपन हो जाएगा और जो भी कॉम्प्रेस एयर है वो रिजर्वायर में चला जाएगा 2 to 3। नाउ पिस्टन एट पॉइंट 3 मतलब एट टीडीसी। अब पिस्टन क्या करेगा, ऊपर से फिर से नीचे आएगा नेक्स्ट स्ट्रोक के लिए जो उसका सक्शन स्ट्रोक होगा। तो 3 to 4 ये एक ही पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, सिर्फ टीडीसी पी है दोनों। ओके, सो जैसे ही पिस्टन 3 पे पहुंचेगा, टीडीसी पे पहुंचेगा, वो डाउनवर्ड स्ट्रोक करेगा और जैसे ही डाउनवर्ड स्ट्रोक करेगा वो 0.4 मतलब टीडीसी का ही सुपर इम्पोज पॉइंट है वो। सो पिस्टन डाउनवर्ड जैसे स्ट्रोक करेगा वैसे ये जो सिलेंडर है ड्यू टू द वैक्यूम जनरेशन इनसाइड द सिस्टम, ये बैफल प्लेट ओपन हो जाएगा, ये बैफल प्लेट क्लोज ही रहेगा और सिस्टम के अंदर एयर फिल्ड होने के लिए स्टार्ट हो जाएगा टिल द बीडीसी along the path 4 to 1। सो इस वे से अगेन साइकिल रिपीट होगा, कंप्रेशन, फिर से 2 to 3 डिस्चार्ज दैट इज आउटलेट एंड अगेन 4 to 1 हमारा क्या होगा, सक्शन। 4 to 1 सक्शन, 1 to 2 कंप्रेशन, 2 to 3 अवर डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज बोलो या आउटलेट बोलो। ओके, सो इस वे से ये होगा। सो अभी मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, एज दिस इज अ वर्क इनपुट डिवाइस,
हम इसको वर्क इन एज ए इनपुट देते हैं, सो ये हमें आउटपुट एज अ प्रेशराइज एयर या वर्किंग मीडियम एज अ प्रेशराइज वर्किंग मीडियम हमें एज अ आउटपुट देता है। सो हमारा एम क्या होगा, इस चीज का एफिशिएंसी कब बढ़ेगा, या हमारा मोटो क्या रहेगा कि इस चीज को, इस कंप्रेसर को जितना कम से कम वर्क इनपुट दिया जाए उतना हमारा बेनिफिट रहेगा। फॉर एग्जांपल एक कंप्रेसर है, वो लेता है 12 जूल ऑफ एनर्जी वर्क डन, 12 जूल ऑफ अगर वर्क डन ले रहा है टू डेवलप 10 बार ऑफ प्रेशराइज एयर, और दूसरा एक कंप्रेसर है वो सिर्फ 10 जूल ले रहा है टू डेवलप 10 बार, और तीसरा कंप्रेसर वो सिर्फ 5 जूल ही ले रहा है टू डेवलप 10 बार ऑफ आउटपुट एयर। सो कौन सा बेटर है, डेफिनेटली 5 जूल वाला, ओके, जो कम वर्क इनपुट ले रहा है और ज्यादा हमें उतना ही हमें आउटपुट दे रहा है। मतलब 12 जूल इन वर्क इनपुट वाला भी 10 बार ले रहा है, 10 बार का ही एयर दे रहा है, 10 जूल वाला भी हमें 10 बार का ही एयर दे रहा है, और 5 जूल वर्क इनपुट जो ले रहा है, 5 जूल ऑफ वर्क इनपुट जो ले रहा है वो भी हमें 10 बार का ही एयर दे रहा है। सो कम वर्क इनपुट में हमें उतना ही पावर मिल रहा है, उतना ही कॉम्प्रेस्ड एयर मिल रहा है। सो हम कौन सा वाला सिलेक्ट करेंगे, जो कॉम्प्रेसर हमारा 5 जूल में ही हमें क्या कर रहा है, 10 बार इतना एयर कॉम्प्रेस दे रहा है। सो ये जो सब डिपेंड करता है कि आप कौन सा पाथ, कौन सा कंप्रेशन साइकिल यूज कर रहे हो, कौन सा कंप्रेशन प्रोसेस यूज कर रहे हो, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस यूज कर रहे हो या आइसेंट्रोपिक यूज कर रहे हो या पॉलिएंट्रोपिक यूज कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो कंप्रेसर है उसको कितना वर्क इनपुट लगेगा। अगेन ये डिपेंड करता है आपका मल्टी स्टेजिंग, आप कितने स्टेजेस में उसको 10 बार अचीव कर रहे हो। अगर आप सिंगल स्टेज में 10 बार अचीव कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ज्यादा वर्क इनपुट देना पड़ेगा। अगर यही 10 बार का एयर मैंने 2 स्टेज या 3 स्टेज में बनाया, सो 2 स्टेज में जो वर्क इनपुट लगेगा वो 1 स्टेज से थोड़ा कम लगेगा, 3 स्टेज में उससे भी कम लगेगा। सो जितना स्टेजिंग बढ़ाएंगे हम उतना वो भी इफेक्ट करता है कि वर्क इनपुट हमें कितना देना है फॉर द सेम आउटपुट एयर, कॉम्प्रेस्ड एयर। ओके, सो ये बात आप ध्यान में रखो कि जो भी एरिया इंडिकेट करता है हमारा पीवी डायग्राम, दिस इज नथिंग बट द वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर, बिकॉज ये हमारा कंप्रेसर है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, इंजन नहीं है हमारा कि जो वर्क हमें आउटपुट कर वर्क दे रहा है। क्योंकि इंजन जो होता है वो सिर्फ केमिकल, जो हमारा एयर फिल मिक्सचर होता है उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है, उससे आउटपुट निकालता है, वर्क एज आउटपुट देता है। बट ये जो कंप्रेसर है वो वर्क एज अ इनपुट लेता है। सो जितना हम कम इनपुट देंगे उतना हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगा, इज इट। और इंजन के बारे में उल्टा होता है, इंजन क्या है, वर्क डेवलपिंग डिवाइस है, तो जितना वर्क आउटपुट वो ज्यादा देगा उतना हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क कंज्यूमिंग एंड वर्क डेवलपिंग डिवाइस। सो ये हमारा वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। सो ये होगा हमारा पीवी डायग्राम, और इस डायग्राम को इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं। द एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली इंडिकेटिंग दैट कि इतना वर्क इनपुट हमें कंप्रेसर को देना है टू डेवलप दैट मच बार ऑफ प्रेशर। ओके, एंड दिस विल बी अ मैग्नीट्यूड ऑफ आवर वर्क इनपुट, 12 जूल, 10 जूल और 5 जूल, जो भी है डिपेंड कि आप किस तरह का प्रोसेस यूज कर रहे हो और किस तरह का मल्टी स्टेजिंग यूज कर रहे हो, सिंगल स्टेज, डबल स्टेज, 3 स्टेज, ओके, और किस तरह का अगेन इंटरकूलर यूज कर रहे हो, वो हम बाद में देखेंगे मल्टी स्टेजिंग में, इंटरकूलर एंड ऑल। ओके, बट यहाँ आप सिर्फ ये ध्यान में दो कि ये है हमारा सिंगल स्टेज कंप्रेसर, किस तरह से कंप्रेशन कर रहा है एयर को, 2 स्ट्रोक में इसका कंप्रेशन होता है। समरी ऑफ दिस सिंगल स्टेज रेसिप्रोकल, दैट इज 2 पोजीशन में हमारा 2 स्ट्रोक में हमारा कंप्रेशन हो रहा है। पहला होता है हमारा सक्शन स्ट्रोक, दूसरा होता है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक, एंड हाफ ऑफ द स्ट्रोक जो सेकेंड स्ट्रोक होता है, हाफ ऑफ द अप टू द दिस पॉइंट तक हमारा कंप्रेशन होगा, और उसके जो छोटा 2 to 3 प्रोसेस है उतने पीरियड में हमारा डिस्चार्ज होगा। सो पहला फुल स्ट्रोक TDC टू BDC सक्शन, फिर BDC टू half of the or 60% of the stroke is compression and remaining 40 is the discharge. Okay, so इस तरह से हमारा compression होता है। ये हमारा PV diagram है which is coordinating with the this what piston cylinder assembly
वर्किंग कंडीशन. सो इन दैट वे वी कैन एक्सप्लेन इन एग्जाम ऑल्सो. ओके, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो. यहाँ आपका सिलेंडर और इसको ही सुपर इम्पोज करके पीवी डायग्राम. सो इट इज अ बेटर वे टू एक्सप्लेन और बेटर वे टू रिप्रेजेंट कि पीवी और एक्चुअल जो डायग्राम है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज द बेस्ट वे टू ड्रॉ इन एग्जाम. Okay, I hope you have understood. If you feel difficulty, do ask in our comment section. Thank you.